شاعر محمد شاہد قرآن صاحب قرآن مجید فرقان المجید کی اپنے صوت میں تلاوت کرنا اتفاق امام مسیحہ سیدنا مولانا امام اللہ وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Mustafa hai
جانتا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، ارے دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب میں نے پنجے تل کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب میں نے پنجے تل کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، اور خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، اور خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ارے ان کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
آئیے حضرات محترم، کچھ عرصہ پہلے سے قبل ایک مرتبہ سید الانبیاء والمرسلین راحت العاشقین مراد المشتاقین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رحمہ فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ابھی درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلم وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے احسان گاؤں کی اس جمعہ مسجد میں اولاد رزق اللہ شاہ، اولاد غوث اعظم، جانشین حضور پیر طریقت الحاج سرکار سید محمد عطا القادری فاطمی، یعنی میری مراد پیر طریقت الحاج سرکار سید احمد محب القادری فاطمی مدد اللہ علیہ والنورانی ہمارے گاؤں میں ہماری مسجد میں جلوہ فرما ہے۔ یقیناً آل بیت آل رسول کا ہمارے گاؤں میں تشریف لانا گویا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو لے کر ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں۔ حضور رسول پاک اور حضور دادا رزق اللہ شاہ طالب محیط رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور بزرگان دین کے فیضان کو لے کر ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنے پوری ظاہری حیات میں، پوری ظاہری زندگی میں اس امت کی فکر کرتے ہوئے کہ جب آپ اس دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو پہلی صدا آپ کی رب حمد امتیں ہوتی ہے، اور پوری ظاہری زندگی میں آپ نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فکر کی ہے، کسی کی فکر کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہیں تو وہی ہم خوش نصیب امتی ہیں کہ ہمارے حق میں آقا دعا فرماتے رہے کہ میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، یہاں تک کہ جب قبر انور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم دھر پہ رکھا جاتا ہے اور اس وقت بھی آقا کے لب مبارک ہی ظاہر ہوتے ہیں، ایک صحابی رسول جو اپنے کانوں کو لگاتے ہیں تو اس وقت بھی حضور کی زبانی یہی صدا ہوتی ہے، رب حبل امتی، رب حبل امتی۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے یہ جو کچھ دعائیں فرمائی، پوری زندگی امت کی فکر میں گزار دی، اخیر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا حکم ہوتا ہے اور رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ محبوب فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، تو محبوب آپ فرما دو کہ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے اس کا میں کچھ اجر اور کچھ بدلہ نہیں چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، ہاں صرف اتنی سی بات ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو، بس میں تم سے یہی چاہتا ہوں، کیونکہ یہی وہ کشتی ہے جس کشتی کے اندر ہماری نجات ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ بھی نچوڑ ہے کہ میری آل یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے وہی صرف طوفان نوح سے محفوظ رہے، اور باقی کے سارے لوگ جو ہیں طوفان نوح کے اندر پانی کے اندر ڈوب کر ہلاک اور برباد ہو گئے، نصف و نابود ہو گئے۔ اسی طرح اس امت کے لیے میری آل ہے، میرے اہل بیت کرام ہیں کہ جنہوں نے ان کی محبت کا جام پی کر اس محبت کی کشتی میں سوار ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اس محبت کی کشتی سے باہر رہے وہ دنیا میں نصف نابود ہو گئے۔ لہذا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ اہل بیت کرام سے محبت و عقیدت رکھنے والے، اور ان میں بھی بالخصوص حضور پیر طریقت الحاج سرکار سید محمد عطا القادری فاطمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے جانشین پیر طریقت الحاج سرکار سید احمد محب القادری فاطمی متصل العالم نورانی سے عقیدت محبت رکھنے والے ہیں، اور آقا نے اخیر میں اس امت کو وصیت فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کا دامن تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ دو چیزیں ایک میری آل اور ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ
मदरसे से जुदा नहीं होगी, यहाँ तक कि वो हौसले कौसर पर मेरे पास जमा होगी, आएगी। और यही बात हम इन अहले बैत किराम के अंदर देखते हैं कि इनसे मोहब्बत करने वालों को इन्हीं के दर से कुरान का भी पैगाम मिलता है, शरीयत का भी दर्स मिलता है, दुनिया में कैसे जिंदगी जीना है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पैगाम भी इन्हीं के दर से मिलता है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह तादाद सरकार ने कुरान और हदीस की तालीम को आम करने के लिए जो है गुजरात और काठियावाड़ के अलग अलग शहरों और देहातों में 300 मस्जिद और मदरसों को फैज़ल मोहम्मद ट्रस्ट के नीचे आपने जो है शुरू फरमाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 300 मस्जिद मदरसे चल रहे हैं, जिनके लिए कायदे किताबों की जरूरत हो, इमामों के लिए पगार की जरूरत हो, वो सारी जरूरतें अल्हम्दुलिल्लाह अपना फैज़ल मोहम्मद एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट सावरकुंडला का ये ट्रस्ट जो है दादापुर सरकार का पूरा कर रहा है। साथ ही साथ दादापुर सरकार ने जैसा कि कुरान हदीस के पाक में आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी आल और कुरान ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होगी, आपने कुरान की तालीम के लिए 2 बड़े दारुल उलूम का क़याम फरमाया, जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज 630 बच्चे और बच्चियां दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। हाफिज, कारी, आलिम, नाज़रा की सारी तालीम इस दारुल में दी जाती है और साथ ही साथ दीनी तालीम के साथ साथ इन बच्चों और बच्चियों को फ्री में अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी कराई जाती है और इन तमाम बच्चों के खाने पीने रहने सहने का तमाम तरह इंतजाम ये अपने फैज़ल मोहम्मद ट्रस्ट की तरफ से होता है। साथ ही साथ इसी बारगाह से, इसी दरबार से, क्योंकि आका ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों चीजें कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगी और यही वो आल है जिनकी मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने अपने महबूब की ज़बानी फरमाया कि ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे कुछ बदला नहीं चाहता हूँ मगर मेरे अहले कराबत, मेरे अहले खानदान से तुम मोहब्बत करो और इसी मोहब्बत में इस दरबार से हमें जन्नती पैगाम मिलता है, जन्नत का रास्ता दिया जाता है और वो जन्नती रास्ता जो है वो नेक काम मिशन है कि जहाँ जहाँ मस्जिद मदरसे नहीं है हम सब मिलकर उस गाँव की फिक्र करें, क्योंकि दादापुर सरकार ने मेरे दादा ही के जो है शादी के मौके पर 23/11/2015 को एक अजीम पैगाम अता फरमाया। आज हमारे घरों पर शादियाँ होती हैं तो हमें अपनी फिक्र होती है, अपने खानदान और अपने मेहमानों की फिक्र होती है, लेकिन ये वो खानदान है, ये वो घराना है, ऐसी शादियों के मौके पर भी उम्मत की फिक्र करते हैं, नाना खान की उम्मत की बख्शिश का रास्ता तलाश करते हैं। तो उसी वक्त 23/11/2015 को मुनी दादा की शादी के मौके पर दादापुर सरकार ने एक पैगाम अता फरमाया कि मान लो हम किसी गाड़ी में बैठकर सवार होकर जा रहे हैं अपने साथियों के साथ और अल्लाह न करे वो गाड़ी किसी खड्डे के अंदर गिर गई, एक्सीडेंट हो गया और हम सलामत जो है उस गाड़ी से बाहर आकर रोड पर खड़े हो गए और हमारे बाकी के साथी जो है उस खड्डे के अंदर गाड़ी में दबे हुए, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या हम अपनी मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ चलने लगेंगे या फिर जो खड्डे में गिरे हुए हैं उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? सबने एक सवाल होकर कहा कि बाबू जो खड्डे में गिरे हैं उनको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो दादापुर सरकार ने फरमाया इसी तरीके से उन गाँव का हाल है कि जिन गाँव के अंदर मस्जिद मदरसे बन गए तो वो लोग तो जहालत और जो है बेइल्मी के खड्डे से बाहर आ गए, लेकिन जहाँ अभी भी मस्जिद मदरसे नहीं है वो जहालत और बेइल्मी के अंधेरे के अंदर डूबे हुए हैं, उनको बाहर लाना, उनके बच्चों की दीनी तालीम का इंतजाम करना और उन लोगों के अल्लाह की बारगाह में झुकने के लिए मस्जिद या इबादतगाह का इंतजाम करना, ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और उसी वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक काम शुरू हुआ, लोग उसमें जुड़ते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के अरसे में इस मिशन के जरिए 180 मस्जिद मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह तामीर होकर मुकम्मल हो गए। हम अपने आसपास में देखेंगे तो बहुत सारे काम नजर आएंगे। धारी की जुमा मस्जिद ये नेक काम मिशन का जो है हिस्सा है, मदीना मस्जिद धारी ये नेक काम मिशन का हिस्सा है, सरसई के अंदर जुमा मस्जिद ये नेक काम मिशन का नतीजा है, बगसरा के अंदर जो है अक्सर मस्जिद ये नेक काम
मिशन का हिस्सा है। उसके अलावा मिल्खा के अंदर और बहुत सारे जूनागढ़ के अंदर बहुत सारी मस्जिदें हम देखें तो ये नेक काम मिशन का हिस्सा है। करीब में कतकपुरा के अंदर जो है मदरसा, ये नेक काम मिशन का हिस्सा है। खानागीर के अंदर, दोहरा के अंदर ये नेक काम मिशन का हिस्सा है। तो ये सारे जो है गांव के अंदर मस्जिद और मदरसों का कयाम ये नेक काम की बरकतें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक काम में होता क्या है, किस तरीके से काम चलता है, तो लोग अपने अपने घरों में नेक काम मिशन का एक डिब्बा रखते हैं और पूरा साल उसमें अल्लाह जो भी तौफीक दे, जरूरी नहीं है कि उसमें कोई बड़ी रकम ही डाली जाए या बड़ी रकम ही जमा की जाए, अल्लाह जो भी तौफीक दे, रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया लोग रोजाना अपने हाथों से, अपने बच्चों के हाथों से, अपने घर के औरतों के हाथों से डलवाते हैं, साल के बाद जमा करते हैं और इसी रकम से पूरा साल जो है मस्जिद मदरसों का काम अल्हम्दुलिल्लाह होता रहता है। और एक साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 180 जगहों पर काम मुकम्मल हो गया और आज भी 25 से ज्यादा जगहों पर अभी काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है। तो हम मेरे दादा की आमद की खुशी में हो सके तो कम से कम जो है एक डिब्बा लेकर अपने घरों में इसको रखें। यादगार के तौर पर आज हम जो है अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं तो हम तावीज़ तलब करते हैं कि बाबू को ऐसा तावीज़ देते हैं कि हमारे घर में बरकतें हों, बीमारियां चली जाए, परेशानियां दूर हो जाए। तो आज दादाबू सरकार की इस बारगाह से और खानका से हमें जो तावीज़ मिल रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो दादाबू सरकार की बारगाह से मुरीद दादा के हाथों से हमें कोई जो है कागज का तावीज़ तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये नेक काम मिशन के डिब्बे का जो है तावीज़ हमें दिया जा रहा है, जिस तावीज़ में हमारे रोजी की बरकतें भी हैं, हमारे घरों की सलामती भी है और अल्लाह की रहमतों को लाने का एक जरिया भी है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने बेहतरीन को तावीज़ दिया है, तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, तो ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद तलब करो। तुम सब्र और नमाज का दामन थाम लो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी, कदम कदम पर अल्लाह की मदद तुम्हें मिलती रहेगी। यही बेहतरीन हमारे लिए तावीज़ है। और जब हम डिब्बों में डालेंगे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, तो इसी रुपये से अल्लाह का घर तामीर होगा। उस घर में कोई नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ेगा, कोई कुरान की तिलावत करने वाला मदरसे में बच्चा कुरान की तिलावत करेगा। लेकिन हम कहीं भी हो, जमीन पर चल रहे हो, बाहयात हो या कब्र में जो है मदफून हो चुके हो, लेकिन इस नेक काम के डिब्बे के जरिए जितने भी मस्जिद और मदरसे तामीर हुए हैं, अल्लाह ताला उसका सवाब हमें जमीन पर भी अता फरमाएगा और अगर कब्र में मदफून है तो कब्र में भी उसका सवाब मिलता रहेगा। और क़यामत तक जिन जिन मस्जिदों में हमारा रुपया भी लगा होगा, क़यामत तक उन मस्जिदों और मदरसों में जो भी इबादतें होंगी, जो भी नेकियां होंगी, अल्लाह ताला उसका सवाब क़यामत तक हमें अता फरमाता रहेगा। यही वो सदका जारिया है कि जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इदा माता आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब आदमी का इंतकाल हो जाता है, उससे मौत आ जाती है, तो उसके अमल का, काम का, नेकियों का सिलसिला खत्म हो जाता है। अब वो न नमाज पढ़ सकता है, न रोजा रख सकता है, न कुरान की तिलावत कर सकता है, न और कोई इबादत कर सकता है, न सखावत कर सकता है। लेकिन आका ने इरशाद फरमाया कि बंदे के ऐसे 3 काम हैं कि मौत के बाद भी उसका सवाब उसे मिलता रहता है। सदक़तिन जारियतिन अव इल्मिन युंतफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, एक सदका जारिया है कि मौत के बाद भी बंदे को उसका सवाब कब्र में मिलता रहता है। यही सदका जारिया है कि हमने एक काम मिशन के डिब्बे में डाला, उससे मस्जिद मदरसा बन गया। अब ये जब तक मस्जिद मदरसे कायम रहेंगे, उसका सवाब हमें कब्र में भी मिलता रहेगा। और दूसरा हुजूर ने इरशाद फरमाया वो इल्म जिससे नफा उठा जाए। हमने किसी को कुरान सिखा दिया, किसी को नमाज सिखा दी, किसी को कोई हदीस सिखा दी, जब तक उस इल्म से फायदा उठाया जाता रहेगा, हमें उसका सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी बात हुजूर ने फरमाई कि जिसका सवाब मौत के बाद भी हमें मिलता रहेगा, वो नेक औलाद है जो अपने मरहूम बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। तो उस नेक
औलाद की दुआ का सवाब भी जो है मरहूम बाप को जो है कब्र में मिलता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है। हम यूँ समझे कि मुनीर दादा हमारे गांव में आए थे और हमें एक बेहतरीन तावीज़ देकर गए थे, जिस तावीज़ में हमारे घर की रोज़ों की बरकतें भी हैं, हमारे घरों की सलामती भी है और हमारे आने वाले नस्लों के लिए जो है ये एक बेहतरीन जो है तावीज़ भी है, क्योंकि आका ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर की अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर करता है। हम इसमें डालेंगे, हमारे घर के बच्चे डालेंगे, औरतें डालेंगी, अल्लाह तमाम के लिए जन्नती महल अता फरमाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि अपने फैजान गाँव में जो अपने फैजल मोहम्मदी ट्रस्ट के दादा अब्दुल सरकार के सफीर हैं अब्दुल रशीद भाई, ये खड़े होते हैं और मुनीर दादा के हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह नेक का मिशन का इत्तिफा ले जाते हैं। अब्दुल रशीद भाई अपने ट्रस्ट के सफीर, साथ ही साथ हमारे यहाँ मौलाना हनीफ साहब नवाज वाले के हाजिर हैं। उन्होंने भी अपनी नियत की कि बाबा के मुबारक हाथों से मैं भी एक डिब्बा अपने घर पर ले जाता हूँ और अपने घर पर दवा करके इंशाअल्लाह डिब्बा रखूंगा। सुभान अल्लाह। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी रकम भी डाले, अल्लाह जो भी हमें तौफीक दे वो हम रकम इसमें डालते रहे, एक साल के बाद ये डिब्बा हमें जमा कराया रहेगा। अब्दुल हमीद भाई, अब्दुल गफ्फार भाई नेक का मिशन का इत्तिफा दादा के मुबारक हाथों से ले रहे हैं। फारूक भाई, कासिम भाई ये भी अल्हम्दुलिल्लाह दादा के मुबारक हाथों से इत्तिफा ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन भाई, अब्दुल गफ्फार भाई ये भी नेक का मिशन का इत्तिफा ले रहे हैं। फारूक भाई, अहमद भाई ये भी नेक का मिशन का इत्तिफा ले रहे हैं। नासिर भाई, अब्दुल गफ्फार भाई, आसिफ भाई, अब्दुल गफ्फार भाई ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिफा ले रहे हैं। वली भाई, अब्दुल गनी भाई ये भी अल्हम्दुलिल्लाह नेक का मिशन का इत्तिफा ले रहे हैं। मुश्ताक भाई, रुल्तान भाई ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिफा ले रहे हैं। रफीक भाई, भिखू भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नेक का मिशन का इत्तिफा ले रहे हैं। अब्दुल करीम भाई, अब्दुल गफ्फार भाई ये भी अल्हम्दुलिल्लाह नेक का मिशन का इत्तिफा ले रहे हैं। सुलेमान भाई, जमाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी नेक का मिशन का इत्तिफा बाबा के मुबारक हाथों से लिया है। अल्लाह सबको जो है नवाजे, खूब बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल लतीफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुनीर दादा या फैजान तशरीफ लाए जी। तो अब्दुल लतीफ भाई मुनीर दादा के यहाँ आमद की खुशी में वो अपने बेटे सरफराज को दारुल उलूम में एडमिशन दिला रहे हैं, जबकि दारुल में 100 पर रेटिंग है, लेकिन इन्होंने नियत की है तो फिर इंशाअल्लाह उनकी नियत को जो है बाबा के सत्ते में अल्लाह कबूल फरमाए और उस बच्चे को इंशाअल्लाह अपने दारुल में ले लेंगे। अब्दुल रज़ाक भाई वालुपुरा ये भी नेक का मिशन का इत्तिफा ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है, दुआओं की कबूलियत के लम्हात हैं। अशरफ भाई, उमर भाई वो भी नेक का मिशन का इत्तिफा ले रहे हैं। अपने किसी भाई के लिए, किसी पड़ोसी के लिए अगर लेना हो तो वो उनके लिए भी ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रशीद भाई तो अपने सफीर होंगे, लेकिन आज दादा अपने गांव में आए हैं तो इस खुशी में हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि कोई एक दो सफीर बन जाए, तो ये काम कंसर्ट का है। हाँ
यूसुफ भाई अब्दुल गनी भाई ये भी नेका मिशन का रुपा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन भाई कासिम भाई ये भी नेका मिशन का रुपा ले रहे हैं। रफीक भाई महबूब भाई ये अपनी दुकान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दुकान ले रहे हैं, तो अपनी दुकान के लिए भी ले सकते हैं। नासिर भाई गुल मोहम्मद भाई इन्होंने भी नेका मिशन का दुकान दादा के मुबारक हाथों से लिया है। अल्लाह सबको खूब नवाजे, खूब बरकत अता फरमाए और सबके घरों में खूब इत्मीनान और सुकून अता फरमाए। तो आज इलेक्शन के लिए टाइम है और सब उसमें बिजी है, लेकिन फिर भी जी आज જેમ કે પુરુષભાઈ કીધું કે ઇલેક્શનનો સમય હોવાના કારણે લોકો પોતાની ગાડીઓ લઈને થોડા બિઝી છે, એટલે અમુક લોકો નથી આવી શક્યા, પણ જે હાજર છે એ બધા ખુશનસીબ છે। આપ સૌએ જે સમય આપ્યો અલ્લાહ આપના સમયને કબૂલ ફરમાવે, હાજરીને કબૂલ ફરમાવે અને દુનિયા આખિરતમાં એનો બહેતર બદલો અતા ફરમાવે। આજે રાજકોટની અંદર બાપુને ખાસ ચાહવાવાળા, ખાસ એટલે બહુ દિલો જાતથી બાપુથી મોહબ્બત હકીકત રાખવાવાળા અને દીન કોમના કામમાં હંમેશા આગળ રહેવાવાળા કે જેમના ઘરે ખુદ મુરીદ દાદા અને ફેમિલી 1 વર્ષ જેવું એમના ઘરે રોકાણ થયેલું અને ખિદમતનો મોકો મળેલો એવા હાજી હનીફભાઈ હુસેનભાઈ મકવાણા आज अल्लाहની રહેમતમાં પહોંચી ગયા કે જ્યાં જાવું દાદાની એક ફરજ ને એક અહમ જવાબદારી છે, પણ છતાં બેસાણ તારીખ આપી હતી, સમય આપેલો હતો એટલે બાપુએ કીધું કે આપણે તારીખ આપી તો પહેલાની હાજરી થઈ ગઈ, પછી ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે રાજકોટ જશું। શોહરમાં ત્યાં દફન વિધિ છે, ત્યાંથી કમસે કમ 2 કલાક જેવી મુસાફરી પણ છે, 100 કિલોમીટર જેવું અહીંથી થાય। तो अल्हम्दुलिल्लाह